Hey guys, welcome to my channel Learn and Crack. My name is Rahul Debroy, and this is the third video of the series that I've started, the Sure Shot Questions. The idea is to get you acquainted with the questions that you're going to find in exams like banking, insurance, and all this type of CAT, MAT, and all this type of exams. So if you haven't watched my previous videos, so I'll recommend you to watch those videos also. I'm sure you're going to learn new things. You're going to get new values. Anyway, uh, in this video, I'm going to cover questions from spotting errors, fillers, parajumbles, and the standard of question is basically of the prelims and the Clark prelims and main standard. Okay, so without making much delay, let's get going. So here the first question is, in the following question, one part of the sentence may have error. Find out which part of the sentence has an error and select the appropriate option. If a sentence is free from error, select no error. So we have four options, including option E, option number 5, that is no error. Out of these four options, if you find any error in any of these options, you have to select that particular option as your answer. If supposingly you do not find an option with error, select option E as your answer. Okay? So I believe you got what you have to do. So option A, sea levels are rising as a result of climate change, while deltas are themselves sinking, and together this means the relative sea level is rising extra fast. Okay, should I read out the sentence again? Sea levels are rising as a result of climate change, while deltas are themselves sinking, and together this means the relative sea level is rising extra fast. I'll encourage you to take 10 seconds and see for yourself if you can find the error. There's an easy one. See, what's the difference between arise and rise? What's the difference between arise and rise? Arise means to come to light, or as they say, to emerge. Okay? To emerge. And rise means to move up. So we cannot interchange those words. तो यहाँ पे क्या है? Sea levels are arising as a result of climate change. Sea levels are not emerging. Sea levels are rising. They are not coming to light. Arise is used like new difficulties have arisen. ठीक है? तो ऐसा करके हम लोग यूज करते हैं या arisen. तो पॉइंट बीइंग यहाँ पे have बोला है मैंने तो arisen होगा. New difficulties have arisen. तो सी लेवल्स आर अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट. तो अराइजिंग नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? सी लेवल्स आर राइजिंग, बढ़ रहा है. ठीक है, टू मूव अप एज अ रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज. तो यहाँ पे अभी सेंटेंस करेक्ट हो गया. देयर वाज एन इजी वन. तो द बेसिक डिफरेंस इज, ये आपको समझना है कि अराइज एंड राइज के बीच में डिफरेंस क्या है एंड कैसे इसको यूज करते हैं सेंटेंस में. ठीक है, देखो द आइडिया बिहाइंड दिस सेंटेंस, देखो इतना टफ कोई ग्रामेटिकल रूल वगैरह कुछ नहीं था. यहाँ पे नॉर्मल एक वर्ड के यूजेस में प्रॉब्लम था. अगर ऐसे बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे फोकस ऑन द रूल्स एंड टेक्निक सो मच कि वो बेसिक चीजें भूल जाते हैं. कि सेंटेंस में एकदम बेसिक सा अगर एरर कोई रह गया सेंटेंस में, वो हमेशा प्रोनाउन कहाँ है, एडवर्ब कहाँ है, इसके साथ क्या रूल लगेगा, वो सब सोचने में लग जाते हैं. बेसिक चीजें निकल जाते हैं सामने से. ठीक है, तो let's see the next question. Suffering happened when you identify with the incident and dwell on it. Suffering happened when you identify with the incident and dwell on it. So this is a general sentence, ठीक है, like something we call a general truth. जनरल ट्रूथ. तो यहाँ पे जनरल ट्रूथ में क्या होता है? द सेंटेंस जनरली इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस में. सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है. सफरिंग हैपेंड व्हेन यू आइडेंटिफाई विद द इंसिडेंट एंड ड्वेल ऑन इट. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पास्ट टेंस V2 फॉर्म यूज किया है. वर्ब V2 फॉर्म में आ गया. हैपेंड, हैपेंड, हैपेंड. ठीक है, तो हमें सिंपल प्रेजेंट करने के लिए, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करने के लिए इसको क्या करना होगा? सफरिंग हैपेंस.
तो अभी ठीक ठीक है, क्योंकि अचानक से आप सेंटेंस को यहाँ पे पास्ट टेंस में लेके नहीं जा सकते हो, क्योंकि सेंटेंस इज अ जनरल ट्रूथ एंड जनरल ट्रूथ डजंट अलाउ यू टू टेक सेंटेंस इन अ पास्ट टेंस। तो जनरल ट्रूथ जनरली या रेगुलर एक्शन हैबिचुअल एक्शंस ये सब चीजें हमेशा हम लोग क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट में दैट मींस सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। तो सफरिंग हैपेंस व्हेन यू आइडेंटिफाई विद द इंसिडेंट एंड ड्वेल ऑन इट। तो सिंपल था। नेक्स्ट सेंटेंस, sports development is a long term process, something that yields into results after years of hard work. I want you all to take 10-second time and think about this answer. क्या हो सकता है इसका? Sports development is a long term process, something that yields into results after years of hard work. बहुत सिंपल सा था। हाँ, यहाँ पे वर्ब क्या है? Something that yields into, now yield is a transitive verb. ठीक है, it's a transitive verb, so it doesn't need a preposition, it doesn't need a preposition to use its object. ठीक है, because yield is a transitive verb, it doesn't need a preposition after it to get the object or to use the object after it. यहाँ पे हमने क्या किया, yield के बाद we used a preposition into. ठीक है, ये into का यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि yield is a transitive verb and it doesn't need a preposition after it to use object. ठीक है, तो something that yields result, सीधा results पे हम लोग आ सकते हैं, object पे हम लोग आ सकते हैं, क्योंकि yield के बाद मुझे preposition का जरूरत ही नहीं है, because yield is a transitive verb. Am I clear? ठीक है, देखो अभी sentence पढ़ के देखो, sports development is a long term process, something that yields result after years of hard work. Simple था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही है कि yield के बाद मुझे preposition का जरूरत नहीं है, because yield itself is a transitive verb. ठीक है, then let's move to the next. She politely asked the seller if he felt that she was rude, and the buyers shouted that she does. कुछ प्रॉब्लम लग रहा है? Anyway, आप 10 सेकंड टाइम लो, देखो, and then हम सॉल्व करेंगे. She politely asked the seller if he felt that she was rude, and the buyers shouted that she does. यहाँ पे क्या है? Politely asked. तो यहाँ पे verb क्या है? Asked. कौन सा फॉर्म में है? अपना past indefinite form. That means V2 फॉर्म में. We know by rule if a sentence begin in past. ठीक है? If a sentence begins in past, it continues in past. ठीक है? If a sentence begins in past, it continues in past. ये हमको पता है. तो यहाँ पे देखो, पास्ट में से स्टार्ट हुआ V2 फॉर्म asked लेके, लेकिन एंड हो रहा है does को यूज करके. दैट मीन्स इंडेफिनिट टेंस को यूज करके. तो यहाँ पे क्या होता है? पास्ट टेंस होता. She politely asked the seller if he felt that she was rude, and the buyer shouted that she was. Yes, she was rude. यहाँ पे does नहीं होगा, क्या होगा? She was. ठीक है, क्लियर? तो the rule is if a sentence begins in past, it continues in past. ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, कुछ टेंशन नहीं है. जस्ट आपको फोकस रख के देखना है कि कहाँ पे क्या पढ़ रहा है एंड कहाँ पे क्या एरर हो सकता है, क्या रूल अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है. एंड ज्यादातर क्वेश्चंस तो देखो एग्जाम में हम लोग सीखने के टाइम में इतने रूल सीख ले ये सब करते, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट एग्जाम्स में द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चंस हमने जितना देखा, इट्स बेसिकली बेस्ड ऑन सिंपल थिंग्स, जहाँ पे स्टूडेंट्स का फोकस नहीं जाता है, वहीं पे एरर होता है. तो दिस इज एन एग्जाम्पल. एनीवे, the next question. In the following question, a part of the sentence is missing. Choose the part or parts that fits in the sentence contextually and grammatically. तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक ब्लैंक है, एंड ब्लैंक के लिए तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है. ऑप्शन 1, 2, 3. आपको देखना है कि यहाँ पे ऑप्शन 1, 2 या 3 में से कौन सा ऑप्शन या कौन सा ऑप्शन बैठ सकता है, ताकि द सेंटेंस बिकम कंटेक्चुअली एंड ग्रामेटिकली करेक्ट. ठीक है, समझ में आ गया करना क्या है? So let's see. Historic 13th century mansion in Snowdonia that has been dashed the same family with links of wealth
royalty for 40 generation goes on sale for 200 million pound. Okay? Read out the sentence again. Historic 13th century mansion in Snowdonia that has been dashed the same family with the links of Welsh royalty for 40 generations goes on sale for 200 million pound. So option A, Snowdonia that has been host the same family, that has been host the same family. होस्ट का मतलब जनरली क्या होता है? होस्ट का जनरली दो मतलब, एक तो होता है देखो जो एंकर होता है वो होस्ट होता है, और एक होता है कि होस्ट बॉडी जिसमें आके वायरस या अलग सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आके अटैक करते हैं. तो यहाँ पे द होस्ट that has been host the same family, of course host नहीं होगा, that has been home to the same family हो सकता है definitely. Snowdonia यहीं पे यही तो बोल रहा है, for 40 generations that has been home for the same family with the links of Welsh royalty. तो home to हो सकता है, that has been harmful of course नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचा है, कौन सा? home to. तो mention in Snowdonia that has been home to the same family. तो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन टू ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होता है. देखो इजी था, कोई टेंशन वाला चीज नहीं है, एक बार पढ़ के देख लो, यू विल ऑटोमेटिकली गेट द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 6. As many as 75,331 samples were tested positive and dash 1,02,45,248 specimens have been examined in 203 COVID-19 labs. मजेदार सेंटेंस है. As many as 75,331 samples were tested positive and dash 1,02,45,248 specimens have been examined in 203 COVID-19 labs. यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शन है, have been were tested positive and additional, okay, and all together and cumulatively. चलो I'll give you 30 seconds time, maybe 10 to 15 second time to think about this answer. जल्द से सोचो. क्या लगा आपको? एडिशनल यही लगा क्या? गलत है. क्यों? क्योंकि एडिशनल इज एन एडजेक्टिव. प्लीज अंडरस्टैंड, एडिशनल इज एन एडजेक्टिव. नाउ एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन. तो अगर एडजेक्टिव है, इसके बाद मुझे एक नाउन या प्रोनाउन चाहिए होगा सेंटेंस में, जैसे कि हम लोग यूज करते हैं ब्यूटीफुल गर्ल. ठीक है, तो गर्ल क्या है? नाउन. ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव. तो एडजेक्टिव इज अ वर्ड. कैसा गर्ल? ब्यूटीफुल गर्ल. तो ब्यूटीफुल मेरा एडजेक्टिव है, जो नाउन ये गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है. तो सिमिलरली एडिशनल अगर एडजेक्टिव है तो मुझे इसके पास एडिशनल यूज, एडिशनल पेशेंस, एडिशनल टेस्टिंग्स कुछ भी चाहिए होगा, एक नाउन चाहिए होगा ताकि ये एडजेक्टिव किसी को क्वालिफाई कर सके, क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं है, सीधा कॉमा देके और एक डेटा आ गया सामने, मुझे यहाँ पे एक एडवर्ब चाहिए. ठीक है, ऑल टुगेदर एडवर्ब है, क्यूमुलेटिवली भी एडवर्ब है. अभी इन दोनों फिट बैठता है कि नहीं बैठता है, दिस इज व्हाट आवर मैटर ऑफ कंसर्न इज. ठीक है, ये दोनों क्या है? एडवर्ब्स है. अभी इनको देखना है कि ये फिट बैठता है कि नहीं बैठता है. एज मेनी एज 75,000 इतना सैंपल्स वर टेस्टेड पॉजिटिव एंड ऑल टुगेदर इतना स्पेसिमेन हैव बीन एग्जामिन्ड इन 203 कोविड-19 लैब्स. हो सकता है टोटल इतना हुआ, उतने में से 75,300 सैंपल्स वर टेस्टेड पॉजिटिव एंड क्यूमुलेटिवली. क्यूमुलेटिव का मतलब भी है एक साथ जोड़ के जो फिगर आता है, जिसको दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव फिगर. तो क्यूमुलेटिव भी एडवर्ब है, क्यूमुलेटिवली भी एडवर्ब है. तो यहाँ पे ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 दोनों बैठ सकता है, लेकिन ऑप्शन 1 नहीं बैठ सकता क्योंकि एडिशनल एक एडजेक्टिव है. ठीक है, तो ऑप्शन 2 एंड एडिशनल ऊपर से इसका मीनिंग भी नहीं आ रहा है. ठीक है, इस सेंटेंस से हिसाब से वो कंटेक्चुअली करेक्ट भी नहीं हो रहा है, क्योंकि इतना सैंपल्स अलग से टेस्ट नहीं हुआ, इतना टोटल में से इतना सैंपल्स पॉजिटिव आया है. मतलब टोटल 1 करोड़ 2 लाख समथिंग में से 75,000 समथिंग पॉजिटिव आया है, तो ये अलग से टेस्ट नहीं हुआ है. ठीक है, तो एडिशनल नहीं आ रहा है, ऑल टुगेदर एंड क्यूमुलेटिवली ये दोनों बैठ रहा है. तो ऑप्शन 2 एंड 3 वुड हैव बीन द करेक्ट आंसर. तो ऑप्शन 2 एंड 3 कौन सा है? ऑप्शन सी, नहीं डी, ऑप्शन 2 एंड 3, both 2 and 3. तो ये this would have been the correct answer. So as many as इतना samples were tested positive and altogether इतना specimens have been examined, या cumulatively इतना
specimen have been examined. ठीक है, इजी था, लेकिन इसमें एक चीज देखो समझने लायक है. अगर इफ यू कुड नॉट आइडेंटिफाई कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच एंड इसको कैसे यूज करते हैं, यहाँ पे जाके गड़बड़ करने वाले हो आप. ठीक है, इसीलिए पार्ट ऑफ स्पीच इक्वली इंपॉर्टेंट है. एनीवे, नेक्स्ट सेंटेंस क्या करना है इसके. In the given question, a sentence has been broken into 4 parts. Okay, fine. And the parts are jumbled. Okay, para-jumble का sentence है. Choose the option which provides the correct rearrangement. तो इसको अगर rearrange करके contextually and grammatically meaningfully correct करना होगा, ताकि it gives a sense. तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए I'll just give you overall idea. इसको करना, इसका प्रोसीजर क्या है. जस्ट पहले आपको सेंटेंस का नाउन या सेंटेंस का सब्जेक्ट ढूंढना होगा. क्या किसके बारे में बात हो रहा है. ठीक है, सेंटेंस का सब्जेक्ट और सेंटेंस में नाउन जो है उसको ढूंढना होगा. ठीक है, किसके बारे में बात हो रहा है. एंड इसके बाद अकॉर्डिंगली आपको एक के बाद एक इसको क्लू रख के एक के बाद एक आपको लेना है. जनरली अगर नाउन है, कभी भी प्रोनाउन से जनरली एक सेंटेंस रीअरेंजमेंट के पैराजम्बल का सेंटेंस कभी भी जनरली प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होता है, क्योंकि प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन. ठीक है, इट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन. पहले वो सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करता है या नाउन को इंट्रोड्यूस करता है, इसके बाद उसका प्रोनाउन आता है. तो जनरली ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 में आपको उसका प्रोनाउन मिलेगा जिसके बारे में बात हो रहा है. एंड उसका एक के बाद एक को जोड़ते हुए हम लोग लास्ट इवेंचुअली जो आएगा उस पे चले जाएंगे आंसर. ठीक है, तो देखते हैं. Where the river meets the sea. Beginning of the sentence तो definitely नहीं होगा. You have to find out what is the first तो beginning of the sentence क्या है, कहाँ से sentence begin हो सकता है. that आ गया, that's a relative pronoun. that से कभी भी sentence अभी ऐसे kind of sentences begin नहीं करेगा, क्योंकि इसके आगे पीछे मुझे कुछ नहीं पता. अचानक से that से कैसे होगा, क्योंकि that is a relative pronoun. ये भी नहीं हो सकता है. by again a preposition, नहीं होना है. तो एक ही ऑप्शन बचा है मेरे पास, क्या, डेल्टस. तो ऑप्शन ए आई मीन यहाँ पे डी है, तो डी से सेंटेंस बिगिन हो रहा है, इतना हमें पता चल गया. ठीक है, डी से ऑप्शन बिगिन हो रहा है, इतना हमें पता चल गया. तो क्योंकि इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया डेल्टस इज द नाउन एंड डेल्टस वही सब्जेक्ट है जिसके बारे में सेंटेंस बात कर रहा है. ठीक है, डेल्टस आर बिल्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स. आगे चलते हैं. where the river meets the sea, that are carried downstream. Sediments that are carried downstream. Deltas are built from sediments by rivers and eventually deposited. ये भी नहीं होना चाहिए. तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे. Deltas are built from sediments that are carried downstream. तो अभी ऑप्शन डी के बाद कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है. ऑप्शन बी. चलो इसके बाद देखते हैं. That are carried downstream by the river and eventually deposited. हो सकता है. Downstream where the river meets the sea by the river. देखो अगर मैं ऑप्शन बी के साथ ऑप्शन बी के बाद ऑप्शन ए को यूज करूं, that are carried downstream where the river meets the sea, इसके बाद वाला ऑप्शन नहीं बैठता है. by rivers and eventually meets the sea by rivers कैसे होगा, ये नहीं हो रहा है. तो ऑप्शन ए के बाद ऑप्शन बी ऑप्शन बी के बाद ऑप्शन सी अच्छा साउंड कर रहा है. that are carried downstream by rivers and eventually deposited where the river meets the sea. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी, बी, सी एंड ए अगर मैं करूं तो देखो सेंटेंस एकदम ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट साउंड कर रहा है. आप खुद से देख लो. डेल्टास, ऑप्शन डी, डेल्टास आर बिल्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स. ऑप्शन बी, that are carried downstream, C, by the river and eventually deposited where the river meets the sea. So this is the correct formation कि D, B, C, A. किस में है ये. D, B, C, A. ऑप्शन C में है. तो करेक्ट आंसर क्या होगा. ऑप्शन C, D, B, C, A. देखो इतना टफ नहीं था, लेकिन आपको बस जनरली उसका अप्रोच क्या है यही जानना है कि इसको कौन सा अप्रोच लेके मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करूं. क्योंकि अप्रोच में गलत हो गया तो प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अप्रोच आप अगर सही रखोगे तो डेफिनेटली आंसर करेक्ट आएगा. ठीक है, कि पहले आपको सब्जेक्ट निकालो. इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, आई मीन सब्जेक्ट किसके बारे में बात हो रहा है, उसका नाउन निकालो. इसके बारे में क्या बात हो रहा है, इसके बाद आपको बेसिक ग्रामर का अंडरस्टैंडिंग अगर है आपके पास, बेसिक सेंटेंस मेकिंग का अगर अंडरस्टैंडिंग है, तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे ये सब क्वेश्चंस.
ठीक है, यही चीज को डेवलप करना है, यही चीज को अगर नहीं है अब तक ये चीज डेवलप नहीं हुआ तो यही चीज को अपन को डेवलप करना है। तो द बेस्ट वे इज पढ़ो। हाँ, मैं जितना बार भी वीडियो आएगा मैं यही चीज बोलूंगा, रीड एज मच एज यू कैन। जितना पढ़ोगे ये सब सेंस इतना ज्यादा डेवलप होगा, क्योंकि दिस इज वन टॉपिक, सेंटेंस रीअरेंजमेंट और पैराजम्बल। तो बेसिक रूल बहुत कम लगता है इसमें, इसमें सेंस ज्यादा यूज होता है कि आप कैसे सेंस यूज करके किसके बाद क्या बैठ रहा है उस दिमाग में आपका सब फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, आप इसको कैसे कंप्रीहेंड कर पा रहे हो, वही सेंस अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये तो इजीली सॉल्व हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। She filled out a simple form, online form, until curiosity got the best of her and she would work online. She never thought that. तो देखो यहाँ पे शी से ही है, पूरा प्रोनाउन से ही स्टार्ट किया गया है। अभी जितना तक समझ में आया, शी फील्ड कहाँ गया, शी फील्ड आउट a simple online form until curiosity got the best of her and she would work online। देखो ये एक भी, ये अगर ए से मैं शुरू करूं तो इसके साथ ना बी बैठ रहा है, ना सी बैठ रहा है, ना डी बैठ रहा है। चलो अंटिल क्यूरियोसिटी, अंटिल से कैसे स्टार्ट करूं, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसके बाद मुझे आगे पीछे कुछ चाहिए होगा जिसके बारे में वो बात कर रहा होगा। शी वुड वर्क ऑनलाइन अंटिल क्यूरियोसिटी गॉट द बेस्ट ऑफ हर। इसके अगर मैं बी के बाद ए ले लूं एंड अगर मैं बी के बाद ए ले लूं फिर सी एंड डी, आई मीन ए एंड डी अच्छे से फिट नहीं बैठ रहा है। अगर मैं डी से स्टार्ट करूं, शी नेवर थॉट दैट, हाँ, शी नेवर थॉट दैट व्हाट अंटिल, ये भी नहीं होगा, शी फाइल्ड आउट नहीं होगा, शी वुड वर्क ऑनलाइन, डी सी हो सकता है। शी नेवर थॉट व्हाट, शी नेवर थॉट दैट शी वुड वर्क ऑनलाइन हो सकता है, डेफिनेटली होगा, शी वुड वर्क ऑनलाइन अंटिल क्यूरियोसिटी गॉट द बेस्ट ऑफ हर एंड, या अगर मैं ए को रखूं या बी को रखूं, she she never thought that she would work online, she filled out a simple form, ये नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, डी सी बी हो रहा है एंड इसके बाद ए। अगर मैं, चलो अगर ट्राई करके देखते हैं, डी सी बी एंड ए को अगर मैं करूं तो कैसा सेंटेंस बन रहा है, she never thought that she would work online until curiosity got the best of her and she filled out a simple form online। देखो सिंपल हो गया, तो डी सी बी ए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, डी सी बी ए, सिंपल हो गया। She never thought that she would work online until curiosity got the best of her and she filled out a simple online form। हो गया, देखो इजी है, बट पॉइंट इज आपको पेशेंस रख के सॉल्व करना है बस। चलो क्वेश्चन नंबर 9। An imbalanced consumerist culture spawned, Buddha believed that self-sufficient local communities। देखो बुद्धा, अभी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया तो बुद्धा हो सकता है, दिस कुड बी द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, देख लेते हैं। एन इम्बैलेंस्ड कंज्यूमरिस्ट, ये तो होगा ही नहीं, बाय दोस, बाय भी है यहाँ पे नहीं होगा, वुड ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन, एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा है लाइक स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस के लिए, तो कौन सा होगा, ऑप्शन बी। तो बुद्धा बिलीव दैट सेल्फ सफिशिएंट लोकल communities by those who believe नहीं होगा, communities and imbalanced consumerist ये भी नहीं होगा, communities would serve the purpose। तो B के बाद D अच्छा लग रहा है क्योंकि Buddha believed that a self-sufficient local communities would serve the purpose much better than her। Definitely D होगा B के बाद would serve the purpose much better than an imbalanced consumerist culture spawned। हो सकता है, देख लेते हैं बी में क्या है, सी में क्या है, would serve the purpose better than by those, better than by those ये दोनों एक साथ नहीं बैठेगा, डेफिनेटली ये गलत हो गया, तो कौन सा ऑप्शन बैठ गया, ए, इसके बाद सी। चेक करके देख लेते हैं। Buddha believed that and that self-sufficient local communities would serve the purpose much better than an imbalanced consumerist culture spawned by those who believe that bigger is better। ठीक है, तो ऑप्शन बी, डी, ए एंड सी वुड बी द करेक्ट फॉर्मेशन। बी, डी, ए एंड सी ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। सिंपल है, देखो आपको बस पेशेंस रख के पढ़ के चीजों को समझना है, अदरवाइज आंसर करना इतना टफ नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, लास्ट सेंटेंस इस वीडियो का।
परमानेंट बैन टू द यूजर हु पोस्टेड इट, डेफिनेटली नहीं होगा, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस तो इससे हो ही नहीं सकता. द कमेंट एज वेल एज, ये भी नहीं हो सकता. अब्यूजिव कमेंट्स विल नॉट बी टॉलरेटेड. ओके, देख सकते हैं. एंड विल रिजल्ट, हाँ ये तो होगा ही नहीं. एंड विल रिजल्ट से स्टार्ट नहीं होगा. द कमेंट एज वेल एज, इससे भी कुछ सेंस नहीं बैठ रहा है. परमानेंट बैन टू द यूजर, हु पोस्टेड, इससे भी कोई सेंस नहीं बैठ रहा है कि किसी परमानेंट बैन कोई एक चीज के लिए तो होगा, तो वो चीज के बारे में तो पहले इंट्रोडक्शन चाहिए मुझे. तो ऑप्शन सी, अब्यूसिव कमेंट्स विल नॉट बी टॉलरेटेड एंड विल रिजल्ट इन बोथ द रिमूवल ऑफ. हाँ, ऑप्शन सी के बाद डी बहुत सही बैठ रहा है. हम सी के बाद दूसरा कुछ ट्राई करके भी देख सकते हैं. abusive comments will not be tolerated. परमानेंट बैन, हाँ देखो, टॉलरेटेड एंड परमानेंट बैन, अगर एंड या कुछ अगर कंजंक्शन कुछ होता तब मैं परमानेंट को यूज करता, लेकिन यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं. तो अब्यूसिव कमेंट्स विल नॉट बी टॉलरेटेड एंड विल रिजल्ट इन बोथ द रिमूवल ऑफ. यही सी के बाद डी बेस्ट साउंड कर रहा है. रिमूवल ऑफ के बाद देखते हैं ऑप्शन ए, रिमूवल ऑफ परमानेंट बैन. ऑफ परमानेंट बैन कैसे हो सकता है? तो रिमूवल ऑफ द कमेंट एज वेल एज, हाँ ये हो सकता है. रिमूवल ऑफ the comment, option B, as well as a permanent ban to the user who posted it. So option A, C, D, B and followed by A. So C, D, B and A. Option A would have been the correct answer. ठीक है, देखो टफ इतना कुछ नहीं था इसमें भी, तो आपको बस देखना है कि कहां से क्या शुरू हो रहा है. इसमें देखो, अब्यूसिव कमेंट्स विल नॉट बी टॉलरेटेड, दिस वाज द सब्जेक्ट. क्या टॉलरेट नहीं किया जाएगा? अब्यूसिव कमेंट्स that will result in removal of the account and permanent ban. ठीक है, sorry, removal of the comment as well as the permanent ban. So this is the end of this video. I hope you liked it. If you did, so I'll request you to subscribe and follow this channel ताकि ऐसी videos आपको मिल सके and you get to learn new things. So let us end this video here. Take care. Bye.